Assalamualaikum dear students, here your lab instructor engineer Abhias. Today experiment is experiment 6 to design and implement the FIR filter, finite impulse response filter in the MATLAB. The lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation and then the results. Lab objective is the finite impulse response filter design. The equipment which we need in the lab is the PC and the software MATLAB. What is the finite impulse response filter? The term FIR abbreviation stands for finite impulse response and it is one of the two main types of digital filters used in the DSP application, digital signal processing. A finite impulse response filter is a filter whose impulse response is of the finite duration because it settles to zero in the finite time. जैसे आप उसको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो finite time में zero मिल जाएगी. This is contrast to infinite impulse response, which may have internal feedback and may continue to respond the indefinitely. Here the block diagram of the FIR filter XN stand for input, Z is the frequency domain में, Y and Z transform जैसे हम लोग बात करते हैं, HB and BZ stand for the FIR filter. Filters are signal conditioner and function of each filter. It allows the AC components and block the DC. The best example of the filter is a phone line which acts as a filter because it limits the frequencies to a range significantly smaller than the range of human being can hear the frequencies. जैसे आप एक फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, से बात किया, जाहिर सी बात है हम लोग के पास डायरेक्ट आवाज़ आ रही थी मीन्स के बीच में नॉइस वगैरह को रिमूव करके पास करके वो इसी कंपोनेंट को पास करके ब्लॉक करता है डीसी कंपोनेंट को और हमारे पास आप लोगों को क्लियर आवाज़ सुनाई रही होती है. डिज़ाइन मेथड ऑफ FIR फिल्टर के कितने मेथड है, किस तरह से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर को. डिज़ाइन मेथड्स ऑफ FIR फिल्टर बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ आइडियल फिल्टर. The Turing filter approach is the perfect characteristic because the order of filter will increase, so creating the filter and its implementation additional complicated. Due to the efficiency and simplicity of the FIR filter, the most commonly method is the window method. The other method, sampling frequency method, is also very simple to use, but there is a small attenuation in the stop band. तो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है FIR में हम लोग विंडो मेथड यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द विंडो मेथड? द विंडो मेथड फॉर डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन इज़ फास्ट, कन्वीनियंट एंड रोबस्ट बट जनरली सब ऑप्टिमल. इट इज़ इजीली अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द फॉरियर ट्रांसफॉर्म. जैसे मैंने बताया था कन्वोल्व करते हैं दो सिग्नल को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मेकिंग इट इंस्ट्रक्टिव टू स्टडी आफ्टर द फॉरियर थ्योरम एंड विंडो फॉर द स्पेक्ट्रम एनालिसिस. जैसे आप लोगों ने लास्ट लैब में पढ़ा था स्पेक्ट्रम एनालिसिस का. इट कैन बी इफेक्टिवली कंबाइंड विद द फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड. The window method consists of simply windowing a theoretical ideal filter impulse response by some suitably chosen window function h, omega and frequency, w and dot hn, ठीक है, n belongs to the z. Suppose करते हैं we want to design a low pass filter. low pass filter का मतलब जो सिर्फ low frequency signals को पास कर दे, high को ना पास करे. With a cutoff frequency which is represented by omega c, the desired frequency response will be, ये आपकी जनरल इक्वेशन बन जाएगी 1 कि ओमेगा आपकी जनरल फ्रीक्वेंसी लेसन हो जाए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, या तो जीरो हो एल्सवेयर. एन आइडियल लो पास फिल्टर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. आइडियल लो पास फिल्टर में क्या होगा, ओमेगा सी ओवर पाई एन इज इक्वल टू जीरो होगा, जस्ट या जो साइन जो हम सिग्नल यूज़ कर रहे हैं उसमें एन नॉट इज इक्वल टू जीरो. टू गेट दी FIR फिल्टर हम लोग किस तरह से फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर अचीव करते हैं, HLP से रिप्रेजेंट किया जाता है. इज डिटरनेटेड टू बी डिफाइंड ओनली बिटवीन n एंड माइनस n, कि इसकी रेंज होती है डिफाइन की जाती है -n से लेकर n के सिग्नल की रेंज होगी तो वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज वो 0 होगी. द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ द फोर आइडियल क्लासिकल टाइप्स ऑफ द फिल्टर इज द HLP इज द बेसिकली लो पास फिल्टर. हम लोग विंडो के लिए यूज़ करते हैं. EG ओमेगा का सबको पता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे उसने डिफरेंट रेंजेस के सिग्नल्स की डिफाइन की हुई है. -π से π की तरफ सिग्नल है, पहले वो 0 पे दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया फाइनाइट पे. सेकंड कंडीशन में वो उसको डिवाइड करके मीन्स कि उसको बाई पास करके दे रहा है फिल्टर को, ठीक है, बैंड पास पे फिल्टर को पास आउट करके वो आउट दे रहा है. रेक्टेंगुलर विंडो, द रिजल्टेंट फंक्शन इज गिवन बाय द SDN इज इक्वल टू ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी HLPN जो आप लोग का लो पास फिल्टर